ڈیرائیوڈ یونٹس، ماخوذ اکائیاں یعنی اخذ شدہ اکائیاں. یونٹس which are derived from the base and supplementary units، ایسی اکائیاں جو بنیادی اور اضافی اکائیوں سے ماخوذ ہوں. ایسی اکائیاں جو بنیادی اکائیوں اور اضافی اکائیوں سے اخذ کی گئی ہوں آر کالڈ ڈیرائیوڈ یونٹس، ان کو ماخوذ اکائیاں کہتے ہیں. سپلیمنٹری کا مطلب ہوتا ہے اضافی. سم آف دا ڈیرائیوڈ یونٹس آر گیون ان دا فالوئنگ ٹیبل، مندرجہ ذیل ٹیبل میں کچھ ماخوذ اکائیاں دی گئی ہیں. پہلے لکھا ہے فزیکل کوانٹٹی یعنی طبی مقدار، اس کے بعد اس کی اکائی، اس کے بعد اس کی سمبل علامت، اور اس کے بعد اس کو ان ٹرمز آف بیس یونٹس بنیادی اکائیوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد فارمولے کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے ایکسپلینیشن کے کالم میں. تو پہلی ہے فزیکل کوانٹٹی یعنی طبی مقدار. فورس، قوت، اس کی اکائی نیوٹن ہے اور اسے n سے ظاہر کیا جاتا ہے. n اس کی علامت ہے، اور اسے بیس یونٹس کی شکل میں یعنی بنیادی اکائی کی شکل میں لکھا جاتا ہے. یہ کلو گرام میٹر فی سیکنڈ، اور اس کا فارمولہ ہے F برابر ma، نیوٹن کا دوسرا قانون. اس کے بعد ہے ورک، کام. کام کی اکائی آپ کو پتہ ہے جول ہوتی ہے، اسے J سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کا فارمولہ ہے نیوٹن میٹر. اور اس کو بھی پھر اس شکل میں لکھا جا سکتا ہے بنیادی اکائیوں کی کہ کلو گرام میٹر سکیئر پر سیکنڈ سکیئر. اور اس کے بعد اس کا فارمولہ ہے، فارمولے کے ذریعے اس کی وضاحت ہے کہ F ڈاٹ ڈی، یعنی کام کی تعریف یہ ہے کہ کوئی قوت جب کسی جسم کو ڈی فاصلے تک لے جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کام ہوا ہے. اس لیے F ڈاٹ ڈی اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے ma ڈاٹ ڈی، کیونکہ F برابر ma ہوتا ہے. اس کے بعد ہے پاور. اس کی بنیادی اکائی واٹ ہے اور اس کو W سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور بنیادی اکائیوں کی صورت میں اس کو لکھا جا سکتا ہے جولز پر سیکنڈ، جول فی سیکنڈ. تو جول آپ کو پتہ ہے کہ کلو گرام میٹر سکیئر پر سیکنڈ سکیئر ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ اور نیچے آ گیا تو کلو گرام میٹر سکیئر پر سیکنڈ کیوب، یعنی سیکنڈ کا مکعب آ گیا. تو اس کو پھر مختصر شکل میں فارمولے کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے W/T یعنی کام بٹے وقت. تو اس کی تعریف بھی اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ اکائی وقت میں کیا گیا کام، ورک ڈن ان اے یونٹ ٹائم یعنی W/T. اس کے بعد پریشر، دباؤ، اور اس کی اکائی پاسکل ہے، اس کو PA سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر، نیوٹن پر میٹر سکیئر، اور اس کو بھی کلو گرام پر میٹر سیکنڈ سکیئر کی شکل میں یعنی بنیادی اکائیوں کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے. اور اس کا فارمولہ ہے F/A یعنی اکائی رقبہ پر عمل کرنے والی قوت، فورس ایکٹنگ آن اے یونٹ ایریا از کالڈ پریشر یا دباؤ. تو آخری ہے الیکٹرک چارج، برقی بار، برقی چارج. تو اس کی اکائی کولمب ہے، C سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور ایمپیئر سیکنڈ اس کا بنیادی اکائیوں کی شکل میں اس کو لکھا جا سکتا ہے ایمپیئر سیکنڈ میں، اور اس کا فارمولہ ہے Q برابر IT. Q چارج ہے، I کرنٹ ہے، اور T ٹائم ہے. تو اس کو ہم نے کرنٹ کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ I برابر Q/T یعنی اکائی وقت میں کسی جگہ سے جو چارج بہتے ہیں اس کو ہم نے کرنٹ کا نام دیا ہے. تو اسی سے یہ فارمولہ ہم نے اخذ کیا ہے. سائنٹیفک نوٹیشنز، سائنسی طرز اظہار یا سائنسی طریقہ اظہار. نمبرز آر ایکسپریسڈ ان اسٹینڈرڈ فارم کالڈ سائنٹیفک نوٹیشنز. اعداد کو معیاری صورت میں لکھا جاتا ہے، معیاری صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے، جسے ہم سائنسی طرز اظہار کہتے ہیں. We write them in the power of 10. ہم ان کو 10 کی طاقت کی شکل میں لکھتے ہیں.
there should be one non-zero digit on the left side of the decimal. आशारिया के बाएं तरफ एक गैर सिफरी अदद होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, आगे हम मिसाल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द नंबर 137.7 should be written as 1.347 into 10 raised power 2। इसको कैसे हमने लिखा कि अब आप देखें 137.7 है, तो जो बाएं तरफ गैर सिफरी अदद है वो 1 है। तो हम जो साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी तर्ज इजहार में लिखेंगे वो 1.377 इस शक्ल में लिखेंगे। तो अशारिया को दो हिस्से बाएं तरफ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 की ताकत 2 से ज़रब और 10 की ताकत 2 से तकसीम करना पड़ेगा। और 10 की ताकत 2 जिससे हम तकसीम करेंगे वो इसको 2 हिस्से बाएं तरफ ले आएगा, और जिससे हम ज़रब देंगे वो 7 ताकत के तौर पर लिखा जाएगा। तो 137.7 को हम 1.347 ज़रब 10 की ताकत 2 लिखेंगे। और and 0.0023 should be expressed as 2.3 into 10 raised power minus 3 etc। और 0.00023 को हम किस तरह से उसका साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी तर्ज इजहार किस तरह से करेंगे वो अब देखें। अशारिया को हम 3 हिस्से दाएं तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि सबसे जो बाएं तरफ गैर सिफरी अदद है वो 2 है, तो 2 के बाद हम इशारिया लिखेंगे। तो दाएं तरफ 3 हिस्से लाने के लिए हमें 10 की ताकत 3 से ज़रब और 10 की ताकत 3 से तकसीम करना पड़ेगा। जिस 10 की ताकत 3 से हम ज़रब देंगे वो इसको 3 हिस्से दाएं तरफ ले आएगा, और जिससे हम तकसीम करेंगे वो इसकी ताकत के तौर पर लिखा जाएगा। तो 0.0023 को हम 2.3 ज़रब 10 की ताकत -3 लिख सकते हैं। कन्वेंशन फॉर यूजिंग यूनिट्स, इकाइयाँ इस्तेमाल करने की रवायत। पहली रवायत, पहला तरीका, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। इकाई का जो पूरा नाम है वो बड़े हरफ के साथ नहीं शुरू किया जाएगा, इवन फॉर द साइंटिस्ट, चाहे वो किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल न्यूटन, जैसे न्यूटन है, न्यूटन कुव्वत की इकाई है, और इसको जब पूरा हम लिखेंगे, न्यूटन को पूरा नाम लिखेंगे तो बड़े एन से नहीं शुरू करेंगे बल्कि छोटे एन से ही शुरू करेंगे, जिस तरह के ये लिखा हुआ है। दूसरे, द सिंबल ऑफ अ यूनिट, इकाई की जो अलामत है, विच इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि किसी साइंसदान का नाम है, यानी इकाई जो किसी साइंसदान के नाम पे रखी गई है, इज रिटन बाय अ फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ दैट साइंटिस्ट, उस साइंसदान का पहला हरफ लिखा जाएगा उस इकाई के तौर पर। यानी वो इकाई अगर सिर्फ एक हरफ के साथ लिखी जाएगी तो फिर वो हरफ बड़ा लिखा जाएगा। जैसे न्यूटन अगर लिखना हो तो उसकी जगह पे बड़ा एन लिखा जाएगा। इन दोनों से आपने ये बात समझ ली है कि अगर किसी साइंसदान के नाम से कोई इकाई शुरू होती हो और उस इकाई को हम मुकम्मल तौर पर लिखना चाहें तो वो बड़े हरफ के साथ उस इकाई का नाम या उस साइंसदान का नाम नहीं हम शुरू करेंगे, बल्कि वो छोटे हरफ के साथ ही शुरू करेंगे। अगर उस बड़े मुकम्मल नाम की बजाय हम मुख्तसर तौर पर एक हरफ लिखना चाहें तो फिर वो बड़ा हरफ ही लिखेंगे, जैसे न्यूटन की जगह पे सिर्फ एन लिखा है। तीसरा, प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट। प्रीफिक्स कहते हैं साबका, जो किसी नाम के या जो किसी चीज़ से पहले आता है। प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट, किसी इकाई से पहले जो साबका है वो लिखा जाता है विदाउट एनी स्पेस, बगैर किसी खला के। जैसे फॉर एग्जांपल 1 into 10 raised power -3 मीटर इज रिटन एज 1
मिलीमीटर। जैसे कि 1 × 10 की ताकत -3 मीटर को हम 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन 1 मिलीमीटर, 1 mm, इन तीनों के दरमियान में कोई खला नहीं है। इनको इकट्ठा लिखेंगे, कोई खला दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। चौथा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स, बुनियादी इकाइयों को इकट्ठा कैसे हम लिखेंगे, इज रिटन। एक कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन, बुनियादी इकाइयों को इकट्ठा करके हम लिखेंगे विद अ 1 लेटर स्पेस, एक हरफ के खला के साथ, बिटवीन देम, उनके दरमियान। यानी अगर बुनियादी इकाइयों को मिलाकर लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे, तो उनके दरमियान में एक हरफ का खला छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को अगर हम इकट्ठा लिखेंगे, न्यूटन मीटर इज रिटन एज NM। N और M के दरमियान एक हरफ का हम खला छोड़ देंगे। नंबर 5, कंपाउंड प्रीफिक्सेस, मुरक्कब साबके, आर नॉट अलाउड। इसकी इजाज़त नहीं है, मुरक्कब साबकों की इजाज़त नहीं है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 1 माइक्रो फैरड। फैरड आपको पता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर की गुंजाइश की इकाई है। तो 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो 10 की ताकत 6 के बराबर होता है। तो हम माइक्रो फैरड लिखने की बजाय 1 पीको फैरड लिखेंगे। पीको होता है 10 की ताकत 12 के बराबर। तो मुरक्कब साबकों की इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर 1 माइक्रो फैरड लिखने की बजाय 1 पीको फैरड हम लिखेंगे। नंबर 6, ए नंबर such as 5.0 into 10⁴ centimeter is written in a standard form as 5.0 into 10⁻² meter। एक अदद है, एक नंबर है, जैसे उसको लिखा हुआ है 5.0 × 10 की ताकत 4 सेंटीमीटर में, उसको लिखा जाएगा इज रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको म्यारी सूरत में लिखा जाएगा एज 5.0 into 10⁻² मीटर, जैसे कि 5.0 × 10 की ताकत 2 मीटर। हमें पता है कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में तब्दील करें तो 10 की ताकत 2 से तकसीम करते हैं। तो मीटर एक म्यारी इकाई है, इसलिए हम सेंटीमीटर को, जो रकम सेंटीमीटर में दी गई है, उसको मीटर में तब्दील करके लिखेंगे। इसे हम कहेंगे कि हमने किसी रकम को उसकी म्यारी सूरत में लिख दिया है। नंबर 7, व्हेन द मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट, मल्टीपल कहते हैं अज़ाफ को, मतलब 2 का जो मल्टीपल है, 2 का अज़ाफ 4 है, 4 का 8 है, 8 का 16 है, यानी 2 से ज़रब देते जाएं तो हर हिस्से का अज़ाफ आता जाता है। व्हेन द मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रिटन इन द पावर फॉर्म, जब किसी बुनियादी इकाई का जो अज़ाफ है उसको हम किसी ताकत की शक्ल में लिखते हैं, कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखते हैं, द पावर इज अप्लाई टू द होल मल्टीपल, जो वो ताकत है उसका इतलाक पूरे के पूरे अज़ाफ पर होता है, यानी पूरी रकम पर होता है, एंड नॉट टू द सिंगल यूनिट। ऐसा नहीं है कि उसका इतलाक सिर्फ एक इकाई पर होता है। मिसाल के तौर पर, इस मिसाल में आपको समझ आ जाएगी, 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी किलो के ऊपर, के के ऊपर हमने मुरब्बा नहीं लिखा, सिर्फ मीटर के ऊपर मुरब्बा लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक अलग करके लिखा, के एम दोनों का मुरब्बा, और फिर इसको हम लिख सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में तब्दील किया तो 1 × 10 की ताकत 3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसके साथ मीटर स्क्वायर लिखा। ऐसा नहीं हम लिखेंगे कि किलोमीटर को तो मीटर में तब्दील कर दिया, 1 × 10 की ताकत 3 लिखा और साथ अकेला मीटर ही लिखा। जो साथ इकाई लिखेंगे उसका भी साथ मुरब्बा ही लिखेंगे। नंबर 8, फॉर एनी रिजल्ट, किसी रिजल्ट को लिखते हुए,
all the measurements must be converted into appropriate matching base units. तमाम तर जो पैमाइशें हैं उनको मुनासिब मैचिंग बुनियादी इकाइयों के साथ लिखा जाएगा। ऐसी इकाइयाँ जो आपस में तालमेल और जोड़ रखती हों, जो आपस में मैच करती हों, उनकी सूरत में लिखा जाएगा। इस फिक्रे को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फॉर एनी रिजल्ट, कोई हम जब नतीजा लिखेंगे किसी नतीजे के लिए, यानी हम जमा तफरीक करते हैं, तकसीम करते हैं, ज़रब देते हैं और इस पूरे अमल के बाद इस सवाल का कोई नतीजा लिखते हैं, जवाब लिखते हैं, तो उस सूरत में क्या लिखेंगे? ऑल द मेजरमेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अप्रोप्रिएट मैचिंग बेस यूनिट्स। तमाम तर जो पैमाइशें हैं उनकी इकाइयों को मैचिंग इकाइयों की सूरत में लिखेंगे, ऐसी इकाइयों की सूरत में जो आपस में मैच करती हों। मसलन ग्राम, सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम में ग्राम और सेंटीमीटर आपस में मैच करते हैं, और इसी तरह एन, किलोग्राम, मीटर आर मैचिंग यूनिट्स, और एम के एस सिस्टम में किलोग्राम और मीटर आपस में मैच करती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी सवाल में एक इकाई जो है वो सीजीएस सिस्टम के मुताबिक होती है और दूसरी जो है वो एमकेएस सिस्टम के मुताबिक होती है। तो जवाब लिखते हुए हम या तो सीजीएस सिस्टम वाली इकाई को एमकेएस सिस्टम वाली में तब्दील कर देंगे या एमकेएस सिस्टम वाली इकाई को सीजीएस सिस्टम में तब्दील कर देंगे।